So here we are with the next lecture, lecture number 3। हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है the classification of engineering materials and various types of mechanical properties of engineering materials, and we also have understand what is Hooke's law, that is stress is directly proportional to strain generated. And after that, in the previous lecture we understand that how we can make different types of materials, like how we can make steel from the iron, and what is the difference between alloy and composite. And then we have understand the mechanical properties can be changed by changing the percentage of carbon into the iron, and different types of steel like low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel, ultra high carbon steel, stainless steel, high speed steel, and 1841 HSS high speed steel we have understand. So on the basis of molecular structure and composition, or we can say the chemical formula constituent, we have seen how the mechanical properties can be changed. Okay, so in the previous lecture, if we change the carbon percentage, means if we increase the carbon percentage inside the iron, then hardness will be increases. We have to understand this. We can say this is the formula. Okay, hardness increases, strength strength is will also be increases, then ductility decreases, malleability decreases, toughness decreases, and the last one is elasticity. So toughness is decreases and plasticity will also be decreases. Brittleness will increase, and last one, the elasticity will be constant. Elasticity will not be changed if the parent material is not going to be changed. Parent material parent material in case of steel is iron. If iron percentage is not less than 90% or 85%, then the modulus of elasticity or elastic property, elasticity will not change. Okay, so you have to learn this concept, you have to remember this concept. We can correlate with this concept for the this topic, that is heat treatment process. In this process, in this uh, process to change the to modify the mechanical properties by changing the microstructure, not the constituent, by changing the microstructure of the material. Okay, so heat treatment process, we have to understand the definition first. So what is heat treatment process? Heat treatment is the controlled process of heating and cooling. हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज हीटिंग एंड कूलिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स नाम से ही डिफाइन कर देते हैं हीटिंग। हीटिंग समथिंग इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, बट नो, नॉट 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 दिस इज ट्रीटमेंट। मतलब हीटिंग तो किया, ठीक है, जैसे इंजेक्शन लगता है किसी को, लेकिन हम पूरे इंजेक्शन प्रोसेस को नहीं देख पाते हैं। इंजेक्शन का मतलब हमें ये लगता है कि हम एक निडल है और उसको हमने स्किन में चुभो दिया है, दैट इज़ द इंजेक्शन, इंजेक्टिंग। नो, इंजेक्शन से पहले बहुत कुछ होता है। इंजेक्शन से पहले हम कुछ सिरिंज में कुछ जो मेडिसिन है जो लिक्विड के फॉर्म में है, उसको हम उसमें सिरिंज में लेते हैं, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। आफ्टर इंजेक्शन we clean the skin so that if we want something, मतलब कुछ हमने उसमें कट लगाया बॉडी के ऊपर तो वो कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो फिर हम उसके ऊपर कुछ सैनिटाइजर या स्पिरिट लगाते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस
thing is, we can say, the medications, right? So here it is also the heat treatment process is not only the heating the material, it is also the cooling material, how you are going to cool this material. Okay, it will change the microstructure. Okay, so heat treatment is a controlled process of heating and cooling metals or alloy in order to alter means change their physical and mechanical properties. फिजिकल मतलब दिखने में भी वो हम माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप, माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे, माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। सो फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैंने हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट शेप। प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका हीट ट्रीटमेंट करना है। हीटिंग का मतलब मेल्ट नहीं करना है, हीटिंग करना है, सिर्फ हीट करना है विदाउट मेल्टिंग। द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, जैसी प्रॉपर्टी आपको चाहिए वी कैन गेट दैट प्रॉपर्टी, सच एज हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा दूं इसके ऊपर से, और इसमें कोई डिफॉर्मेशन हो गया परमानेंट, इसके ऊपर फोर्स लगा दो तो आप देखोगे इसके यहाँ के मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे। पास पास होने की वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, कुछ एक्सटेंट तक स्ट्रेंथ और हार्डनेस उस सरफेस पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसके ऊपर स्ट्रेस लगा दिया और वो स्ट्रेस उसमें बना रह गया। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ हीटिंग किया जिससे मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर चले गए। दूर दूर जाने से वो डेंसिटी फिर से वापस यूनिफॉर्म हो गई थ्रू आउट द बॉडी। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाई हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू चेंज और अल्टर द मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हीट एनी इंजीनियरिंग मटेरियल्स इज द मेन पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, बस इसके अलावा भी हम लोग कुछ समझ लेते हैं, जैसे टू इंक्रीज द हार्डनेस फॉर अ वियर असिस्टेंस। वियर का मतलब वही सरफेस पे आप स्क्रैचिंग करो, वियर करो, उसको बोलेंगे वियर असिस्टेंस। टू एनहेंस द टफनेस एंड स्ट्रेंथ, तो टफनेस इंक्रीज करने के लिए भी, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। बट आपने ऊपर देखा, अगर हार्डनेस बढ़ता है तो टफनेस कम होता है, ठीक है। लेकिन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ये दोनों चीज़ कंट्रोल की जा सकती है कि किसी मटेरियल का हार्डनेस ज़्यादा चाहिए, किसी मटेरियल का टफनेस ज़्यादा चाहिए, किसी और मटेरियल का, तो टफनेस कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो अलग अलग की बात हो रही है कि टफनेस भी चेंज करना है आपको, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी है, कम ज़्यादा भी करना है। हार्डनेस अगर कम भी करना है, हार्डनेस कम करने का मतलब क्या है, टफनेस को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा बोल सकते हो आपके हार्डनेस को कम करना। तो यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, अगर आपको सिंगल लाइन बनाना है तो आप बोल सकते हो कि टू चेंज द हार्डनेस फॉर, या फिर टू चेंज द अल्टर द हार्डनेस, मतलब वही टू अल्टर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टू इम्प्रूव द डक्टिलिटी एंड मसिबिलिटी, इम्प्रूव बढ़ाना, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। अभी मैंने बताया आपको कि इंटरनल स्ट्रेस, जैसे आप लोगों ने कभी भी अगर वेल्डिंग किया होगा, तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर बस मेल्टिंग करते हैं। मेल्ट करना मतलब टेम्परेचर हाई करना, बहुत ज़्यादा हाई करना। तो आसपास के जो जोन है ये भी तो हीटिंग में आएंगे, मेल्ट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन इसमें हीटिंग हो रही है। हीटिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स, एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी होती है बट वो आगे जा नहीं पाता है, दूर तक जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, सॉलिड्स हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आगे मूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स जो अंदर अभी बस मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, तो आगे जाके स्टक हो जाएंगे और एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे। एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग हो गई और यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग हो गई। यहाँ पे इकट्ठे हो जाने का मतलब स्ट्रेस जनरेट हो गया वहाँ पे। उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और ऊपर भी मैंने बताया, अगर हमने इसके ऊपर एक बार हैमर लगा दिया तो डेंसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेस, उसमें क्या बोल सकते हैं, रिटेन हो जाता है स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को रिलीव करना है। देन रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, तो एक नया टॉपिक आ गया, ग्रेन स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी का मतलब है, अगर मैं इस पर कोई हीटिंग करूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का dimension is not going to be changed if we do a well defined heat treatment process. Okay,
टू इनेबल द फेज ट्रांसफॉर्मेशन टू अचीव स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यही करेंगे हम लोग आगे भी। टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, एक ग्रेन स्ट्रक्चर एक नया वर्ड आ गया है, तो इसको भी समझेंगे हम लोग ग्रेन्स एंड ग्रेन बाउंड्री में। तो हमने फिजिक्स में, हमने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के टॉपिक में हमने पढ़ा था यूनिट सेल। जैसे एक मैं बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक क्यूब होता है और इसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, और एक और एटम होता है जो इसके बॉडी सेंटर पे होता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर हो गया और एक बॉडी सेंटर पे हो जाता है। तो टोटल इसमें एटम्स जैसे भी होते हैं। इसके बाद इसके स्टैकिंग होती है, सारे यूनिट सेल इसके ऐसे ऐसे सब लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसे ही बनता जाता है। लेकिन क्या सारे यूनिट सेल इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे? नहीं, कुछ यूनिट सेल हो सकते हैं ऐसे हो, ओरिएंटेशन अलग हो उनका। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो जब ये ओरिएंटेशन ऐसे है, कोई मटेरियल ऐसे जा रहा है, इस तरह से कोई मटेरियल ऐसे जा रहा है, लैटिस उसका ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री होगा। ठीक है, वही समझेंगे हम लोग यहाँ पे। मेटल्स एंड एलॉयज आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस स्मॉल क्रिस्टल नोन एज ग्रेन्स। देखिए, माइक्रो स्ट्रक्चर पे हमें एटम्स नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर पे हमें ग्रेन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, उन ग्रेन्स को भी अगर और भी हाई रिजोल्यूशन के कैमरे से देखा जाए तो उस ग्रेन्स के अंदर आपको यूनिट सेल्स दिखाई देंगे। देन यू कैन सी द एटम्स। ओके, सो द इंटरफेस बिटवीन टू एडजेसेंट ग्रेन इज कॉल्ड द ग्रेन बाउंड्री। तो दो ग्रेन के बीच में जो डायरेक्शन होगा, जो इंटरफेस होगा दोनों के बीच को, दोनों के बाउंड्री को, या फिर बोल सकते हैं हम दो ग्रेन्स को सेपरेट करता हुआ, वो बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम? ग्रेन बाउंड्री। अब ग्रेन्स क्या आते हैं? ग्रेन्स देखिए, ग्रेन्स आर द मिसमैच ऑफ द यूनिट सेल लैटिस स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये लैटिस स्ट्रक्चर है एक, और एक लैटिस स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है। देखिए, ये लैटिस स्ट्रक्चर इसके ऐसे हैं, तो ये बस फ्रंट व्यू देख रहे हो आप, और इसके लैटिस स्ट्रक्चर ऐसे हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एक इंटरफेस आ गया। ठीक है, अगर ये भी लैटिस स्ट्रक्चर ऐसे होता तो आप इसमें बाउंड्री निकाल नहीं पाओगे। तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट कह रहा है कि मैं ऐसे हूँ, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री आएगी। उसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? ग्रेन बाउंड्री। और ये अलग अलग जब बन जाते हैं तो इनको बोलते हैं ग्रेन्स। तो इसी तरह से ग्रेन्स ये बटे हुए हैं। तो इसमें अगर यूनिट सेल ऐसे है, देखो आप, इसका यूनिट सेल ऐसे है इस डायरेक्शन में, इस वाले ग्रेन में यूनिट सेल कैसे? इस एंगल पे। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि जब यूनिट सेल के जो क्या बोलते हैं, क्रिस्टल है या फिर लैटिस स्ट्रक्चर है, वो मिसमैच हो रहा है, तो मिसमैचिंग लाइन को ही बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। ओके, तो आपको माइक्रोस्कोप लेवल पे आपको ग्रेन्स दिखाई देंगे, ना कि आपको यूनिट सेल दिखाई देंगे। इस तरह से ग्रेन्स दिखाई देंगे, अलग अलग साइज के होंगे। अगर इनको इसको कास्टिंग करके लेके आए तो उसके ग्रेन्स एक जैसे साइज में दिखाई देंगे। कास्टिंग का मतलब मेल्ट किया और उसको सॉलिडिफाई होने दिया, तो उसके ग्रेन में इतने ज़्यादा अलग अलग साइज के नहीं दिखाई देंगे आपको, सारे ग्रेन्स लगभग लगभग सेम साइज के दिखाई देंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो ये मल्टी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, इसमें क्रिस्टल अलग अलग डायरेक्शंस में है। सो देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स सच एज स्ट्रेंथ एंड टफनेस। अभी ग्रेन्स की साइज पे ही डिपेंड करेगा कि मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है। मैं आपको बस एक मोटा मोटी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग जानते होंगे कि एक सपोज एक पिलो है, मतलब तकिया है, तकिया में स्टिचिंग की जाती है, साइड में स्टिचिंग की जाती है कपड़े में। ठीक है, ऐसे ऐसे साइड में स्टिचिंग कर दी। ठीक, तो अगर आप देखोगे बीच में थोड़ा सा उसकी स्वेलो होगा, बीच में पूरा स्वेलो है, तो आप देखोगे ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसी तकिए को बीच में यहाँ पे भी स्टिचिंग कर दी, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ,
जो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की है उसको हटा रहा हूँ। हाँ, अगर आपने इसमें और भी स्टिचिंग कर दी ऐसे, तो पहले आप देखोगे इसमें एक ही ग्रेन है, ग्रेन तो एक ही है, यहाँ पे एक सिंगल ग्रेन है, ये बीच में जो पूरी जगह बची हुई है ये ग्रेन है, सिंगल ग्रेन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्टिचिंग कर दिया मैंने बहुत सारी, ऐसे भी कर दिया और वर्टिकली भी कर दिया। अब मैंने बहुत सारी ग्रेन्स बना दी। अब बताइए ग्रेन की साइज बढ़ गई और नंबर नहीं, ग्रेन की साइज बढ़ गई या कम हो गई? साइज क्या हो गया, पहले साइज बहुत बड़ा था, तकिए के बराबर था, तो साइज अब क्या हो गया, कम हो गया। बट नंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ग्रेन की साइज कम होगी तो नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा होंगे। सेम एरिया के लिए बात की जा रही है, सेम वॉल्यूम के लिए बात की जा रही है, इतने की बात की जा रही है। अब मैं पूछूं आपसे कि वो पिलो, अब मैंने बहुत सारे स्टिचेस कर दिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कर दिए, तो क्या अब हार्डनेस या सरफेस पे जो हार्डनेस है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियस बात है, जब साइज कम हो गया और नंबर्स ऑफ ग्रेन बढ़ गए तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हार्डनेस इंक्रीज होने पे बाकी सारी प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाती हैं वो आप समझ सकते हो। बाकी सारी प्रॉपर्टी वैसे ही बदल जाएंगी। स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, डक्टिलिटी कम हो जाएगी, मैलिटी कम हो जाएगी, टफनेस कम हो जाएगा, उसके बाद हमने ये प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगा, बट इलास्टिक कांस्टेंट, सॉरी इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री आपको समझ में आ चुका होगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ द साइज size of grain decreases, numbers increases and hardness, साइज कम होने पे हार्डनेस इंक्रीज होगा, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद कर लो एक बार। एच का मतलब क्या है, हार्डनेस। एस का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ। डी का मतलब क्या है, डक्टिलिटी। एम फॉर क्या है, मैलिबिलिटी। टी फॉर क्या है, टफनेस। पी फॉर प्लास्टिसिटी। बी फॉर ब्रिटलनेस। ई फॉर सबको जानते हैं, ये क्या है, इलास्टिसिटी। ठीक है, सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज बिंग नेम्ड। नाम हमने जान लिया इसको, तो जो भी अब मैं लेटर यूज़ करूँगा आप समझ जाओगे कि क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। नेक्स्ट इज रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब रिक्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफॉर्म्ड ग्रेन्स, डिफॉर्म कैसे होगा, सपोज एक प्लेट है, इसमें ग्रेन्स ऐसे दिख रहे हैं आपको, हमने माइक्रोस्कोप पे देखा तो ग्रेन्स ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को रोलिंग प्रोसेस लगाऊं, जैसे हमने पीपीटी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लास्ट टॉपिक फॉर्मिंग में, उसमें एक प्रोसेस था रोलिंग। ठीक, तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक बहुत हार्ड रोलर मशीन के अंदर से इस प्लेट को इंसर्ट करूं, तो ये प्लेट पतला हो जाएगा, शीट बन जाएगा। शीट बनेगा तो जो इसके ग्रेन्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। डिफॉर्म्ड का मतलब है खिंच जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे, ऐसे पतले पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको क्या हो गया, डिफॉर्म्ड ग्रेन, डिफॉर्म्ड। और ये रोलर कैसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे। ठीक है, तो डिफॉर्म्ड ग्रेन्स, डिफॉर्म्ड ग्रेन्स है ये। ठीक है, तो इन डिफॉर्म्ड ग्रेन को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफॉर्म्ड ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स। इसमें स्ट्रेन आ गया ना, पहले ग्रेन साइज इतनी साइज की थी, अब इसकी लेंथ बढ़ गई ग्रेन की, तो उसमें अब स्ट्रेन आ गया। तो अब अगर इसको रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाए तो ये स्ट्रेन फ्री हो जाएंगे विदाउट एनी चेंज इन द फेज। फेज का मतलब सॉलिड फेज होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। इट टिपिकली अकर्स व्हेन अ कोल्ड वर्क्ड, कोल्ड वर्क का मतलब है टेम्परेचर कम होना चाहिए टी आर एक्स से। आर एक्स मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन को आर एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा।
ठीक है, आर एक्स। इफ टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग इज लेस देन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उस वर्किंग को बोला जाएगा कोल्ड वर्क, is heated to a specific temperature known as the recrystallization temperature. Recrystallization temperature क्या होगा, कितना होगा, TRX is almost equals to 0.3 to 0.5%, sorry, 0.5 times of the melting point of the material. मतलब 30 to 50% ऑफ द मटेरियल्स मेल्टिंग पॉइंट, बट इट शुड बी इन केल्विन, इसीलिए मैं इसको कैपिटल टी में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कैपिटल टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन। सो रिक्रिस्टलाइजेशन रिस्टोर द डक्टिलिटी एंड रिड्यूस हार्डनेस, हार्डनेस को कम कर देता है। आप सोचो कि जो ग्रेन्स पहले से ही डिफॉर्म्ड हो चुका है, पतला हो चुका है, ऊपर से कंप्रेस हो चुका है, और जो पहले जो ग्रेन था ऐसा, कौन ज़्यादा हार्ड होगा, हार्ड कौन सा होगा, जो अब आपने उसको कंप्रेस कर दिया, अब वो फर्दर कंप्रेशन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ऊपर से क्या लगेगा, वो हार्ड लगेगा। ठीक है, तो इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हार्डनेस उसका क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और डक्टिलिटी रीस्टोर हो जाती है उसमें। डक्टिलिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपने इसको खींच दिया, अब उतनी डक्टिलिटी नहीं जितनी पहले थी, इसको खींचना ज़्यादा, आप इसको ज़्यादा खींचोगे, अब इसको ज़्यादा खींचोगे तो टूट सकता है। ठीक है, तो रीस्टोर डक्टिलिटी एंड रिड्यूस हार्डनेस, क्योंकि डक्टिलिटी इंक्रीज होगी, हार्डनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा मटेरियल। तो डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस को ध्यान रखेंगे आप लोग। इट इज एन एसेंशियल स्टेप इन एनिलिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव द मटेरियल वर्केबिलिटी। अब देखो, जब सॉफ्ट मटेरियल हो जाता है तो आप इसकी हैमरिंग करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप को गेन कर सकते हो। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया आपने, तो मटेरियल और सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद आप उस मटेरियल से बहुत सारे शेप के अलग अलग मटेरियल बना सकते हो, उसके ऊपर फोर्स लगा के, उसकी मशीनिंग करके, कटिंग करके आप शेप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल अब सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, सो वी यूज दिस रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग, इसके ऊपर मटेरियल के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग करके हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सॉरी शेप पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हीट ट्रीटमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं इसको समझते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट तो मैंने समझा दिया है। हीट ट्रीटमेंट के स्टेजेस को समझते हैं हम लोग अब, और उसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। देखिए, बहुत ही आसान है स्टेजेस, अगर आपने समझ लिया, मैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, यू विल यूज योर अंडरस्टैंडिंग एंड राइट योर नोट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, नोट्स और असाइनमेंट्स अकॉर्डिंगली। सो आई विल ओनली एक्सप्लेन द डायग्राम। ओके, स्टेजेस, स्टेजेस में याद रखेंगे हमारे पास स्टेजेस में क्या क्या है, हीटिंग, सोकिंग एंड देन कूलिंग, ये स्टेजेस होंगे हीट ट्रीटमेंट करने के, ये स्टेजेस है। हीटिंग, अच्छा आपको पता है कि टाइम इंक्रीज होगा ही होगा, यहाँ पे टाइम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा बट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, टाइम तो इंक्रीज होता ही है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होगा और एक कूलिंग में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी और कि कूलिंग के डिफरेंट होने से, डिफरेंट स्पीड होने से हम डिफरेंट डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। हीट ट्रीटमेंट के स्टेजेस देख रहे हैं हम लोग। ठीक, इधर क्या है, इधर हमारा टेम्परेचर, इधर हमारा टाइम। ठीक, देन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले से ही हम, वो लाइन होगी
TRX लाइन, मैंने आपको बता दिया है TRX क्या है। ये हमारी TRX लाइन है। ठीक, अब हम इस पे हीट ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो हीट ट्रीटमेंट करेंगे हम, तो आप देखोगे क्या होगा, टाइम और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन से मैं बना रहा हूँ सिर्फ। स्टार्ट किया और TRX से ऊपर चले गए, TRX से ऊपर चले गए। ये टेम्परेचर क्या है, TRX। TRX कितना होता है, इट इज़ 30 to 50% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल जिसका हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हीट किया, उसके बाद हम करने वाले हैं इसमें सोकिंग। तो इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ठीक, हमने यहाँ पे रखा टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके बाद हमें करना है कूलिंग, इसके बाद हमें करना है कूलिंग। यहाँ से हमने पहुँच गए सबसे स्टार्टिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, अब ये प्रोसेस देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये हो रहा है O से स्टार्ट हुआ, A तक गया, A से B पर हुआ कुछ और B से C तक आ गया हम। ठीक, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं जीरो टेम्परेचर है, ये है रूम टेम्परेचर RT। RT का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर। TRX क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो हीटिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है, O to A, और उसके बाद क्या हो रहा है, सोकिंग A to B एंड B to C इज कूलिंग। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर हो रहा है हीटिंग, यहाँ हो रहा है सोकिंग एंड दिस इज कूलिंग। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। स्टेजेस, सॉरी स्टेजेस, ऑल दीज आर स्टेजेस, 3 स्टेजेस आर देयर। फर्स्ट इज हीटिंग, सेकंड इज सोकिंग एंड थर्ड वन इज कूलिंग। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स हमें मिलेंगे जो अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो आगे हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस पे चलते हैं। अब प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ डायग्राम पे बता रहा हूँ, आप लोग इसका नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर आप नोट डाउन करोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एनिलिंग। एक बार पहले मैं समझा दूँ इनको, एक ही बार में समझा देता हूँ आपको कि कैसे कैसे हम ये प्रोसेस डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है, तो सपोज़ एक हमारे पास मेटल का कुछ एक पीस है जो क्यूबिकल फॉर्म में है। ठीक है, सपोज़ ये माइल्ड स्टील या स्टील है, लो कार्बन स्टील है मान लीजिए आप। इस लो कार्बन स्टील का हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है।
तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए 3 स्टेज आपको क्लियर होनी चाहिए, हीटिंग, सोकिंग और उसके बाद कूलिंग। ये 3 तो करना ही करना है। अब ये कूलिंग कैसे करना है उसके हिसाब से प्रोसेस बदल जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। कूलिंग फास्ट करना है, कूलिंग मीडियम करना है या कूलिंग स्लो करना है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें इस सैंपल को मैंने क्या किया, फर्नेस के पास लेके गया। तो फर्नेस को सपोज ये फर्नेस कुछ है ऐसा, इसमें ये जो बॉक्स है इसके अंदर कुछ स्पेस होगा जिसमें हमें इसको कूल कर सॉरी इसको इसके साथ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है। तो मैंने क्या किया, इस सैंपल को हम लोग इसके अंदर लेके गए, ये सैंपल यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इसके जो भी इसमें हीटिंग का बटन होगा, हीटिंग किया, स्टार्ट किया हीटिंग, उसके बाद सोकिंग पे रोक लिया, उसके बाद बंद कर दिया। ठीक, हीटिंग किया, सोकिंग किया, उसके बाद बंद कर दिया फर्नेस को। तो 3 काम करना है हमें। जैसे हमने सैंपल को रखा, अब दिक्कत यही है कि हमने हीटिंग किया, सपोज हमने हीटिंग किया क्या, इसके TRX टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर तक गए, यहाँ पे इस जोन में, यहाँ पे इतने में, ये वाला जोन क्या आंसर है, जो हम TRX से जस्ट ऊपर जा रहे हैं। तो हमने हीटिंग तो किया, उसके बाद कुछ देर के लिए रोक भी लिया, उसके बाद वाला जो प्रोसेस है दैट इज कूलिंग। वो किस तरह से कर सकते हैं हम, एक तो हम चाहें तो फर्नेस को ऑफ कर दिया, फर्नेस को ऑफ कर दिया उसको क्या बोलेंगे, इन फर्नेस कूलिंग, इन फर्नेस कूलिंग। दूसरा कर सकते हैं हम, इस मेटल पीस को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एयर कूलिंग, एयर कूलिंग। और अगर मैं इस मेटल पीस को बाहर तो निकाल दिया और उसके ऊपर हमने वाटर डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, उसको बोलेंगे क्वेंचिंग, इसको बोलेंगे क्वेंचिंग, वाटर कूलिंग, या फिर ऑयल कूलिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्वेंचिंग। तो एक हो गया इन फर्नेस कूलिंग, एयर कूलिंग, और वाटर कूलिंग को बोलेंगे क्वेंचिंग। ठीक है, तो ये 3 तरह की प्रोसेस हो गई कूलिंग की। पहला हो गया एनिलिंग, दूसरा हो गया नॉर्मलाइजिंग, और तीसरा हो गया क्वेंचिंग। अभी क्वेंचिंग भी एक थर्ड प्रोसेस है जिसमें हम वाटर कूलिंग, इसको क्वेंचिंग का नाम मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी अभी हम लोग बस यहाँ पे समझ रहे हैं कि कूलिंग कैसे कर रहे हैं। कूलिंग फास्ट, मीडियम, किस में फास्ट होगा, फास्ट होगा वाटर कूलिंग में या फिर ऑयल कूलिंग में। उससे स्लो कौन सा होगा, एयर कूलिंग। उसके बाद उससे भी स्लो कौन सा कूलिंग होगा, इन फर्नेस कूलिंग। फर्नेस में ही रखना है, बट हम धीरे धीरे स्लोली हम उसको कूल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस को हम लोग डायग्राम के साथ ही बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे इसको। तो पहला प्रोसेस है एनिलिंग, एनिलिंग। ठीक, फिर से मैं वही डायग्राम बनाऊंगा। अब इसमें वही, अब हम लोग एक TRX बना लेते हैं डायग्राम, TRX, TRX की लाइन बना लिया। अब मैं इसमें हीटिंग करने जा रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऊपर तक, उसके बाद उसमें सोकिंग किया, और उसके बाद कूलिंग कर दिया हमने फर्नेस के अंदर, और हम वापस रूम टेम्परेचर पे आ गए। OABC1, ठीक है, इसको C1 बोल रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है बट इंक्लाइंड है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड है। सो O to A इज
हीटिंग above TRX। ठीक है, ये क्या है TRX। उसके बाद AB सोकिंग एंड BC, ये BC1 इज द कूलिंग इन द फर्नेस। अगर आप इसी को सेंटेंस में लिख लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा नोट्स बन जाएगा। कूलिंग इन द फर्नेस, ठीक है, कूलिंग इन द फर्नेस, ये हमारा एनीलिंग प्रोसेस है। ये हमारा एनीलिंग प्रोसेस है, ये हमें पूरा सेंटेंस वाइज और ये डायग्राम के साथ आप बना सकते हो। सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग सेम डायग्राम बनाएंगे, तो मैं डायग्राम को कॉपी पेस्ट ही करूँगा। देखिए ज़्यादा अंतर है नहीं, सिर्फ हमें इसमें नाम चेंज करना है। देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, यहाँ जो C1 लिखा हुआ था उसको C2 कर दूंगा, और कूलिंग इन द फर्नेस की जगह पे यहाँ कर दिया हमने C2। इसको कर दिया C2। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। इसको क्या करना है हमें, C2 और BC2 कूलिंग इन द एयर आउट ऑफ द फर्नेस। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे भी याद रखना है आपको। ये इन द फर्नेस, और यहाँ पर क्या हो गया, इन द एयर। ठीक है, इन द एयर। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये टाइम जो है T2 है, और यहाँ पर जो टाइम है यही वाला T1 है। बाकी सब टाइम मैं सेम मान रहा हूँ, O to A to B, बट यहाँ पे जो टाइम देख रहा हूँ मैं T1 T2, और जो थर्ड है हमारा, थर्ड प्रोसेस इज, थर्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज क्वेंचिंग। क्वेंचिंग फिर से मैं वही कर रहा हूँ, पूरा ये जो डायग्राम हमने बनाया है उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा, ये T2 की जगह पे हम T3 लिखेंगे, C2 की जगह पे C3 लिखेंगे, और यहाँ पे बदल जाएगा, सो दिस इज T3, दिस इज C3, एंड यहाँ पर भी बदल जाएगा, ये C3 हो जाएगा। एंड कूलिंग इन द वाटर और ऑयल,
ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है। सो दिस विल बिकम क्वेंचिंग। ओके, अब मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि T1 ज़्यादा है या T2 ज़्यादा है या T3 ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा है। फास्ट कूलिंग किस में हुई है, वो टाइम कम होगा, फास्ट का मतलब है टाइम कम लगना। तो क्वेंचिंग जिसमें वाटर, उसमें हमें फास्ट कूलिंग मिली है। तो T3 ज़्यादा है या T3 कम है, T3 सबसे कम होगा, सॉरी T3 क्या होगा, सबसे कम होगा। और T1 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि फर्नेस में कूल कर रहे हैं। फर्नेस तो पहले से ही हीटेड था, इसलिए फर्नेस में कूलिंग स्लो होगी, ठीक है। तो टाइम की वजह से क्या क्या बदलाव आ जाएगा अंदर के माइक्रो स्ट्रक्चर में, वो हम लोग एक ही बार में सारे डायग्राम एक ही जगह पे बना लेते हैं, एक ही ग्राफ पे बना लेते हैं। तो इसको मैं स्टार्टिंग से बनाऊंगा, तीनों प्रोसेस को एक ही ग्राफ पे दिखा रहे हैं। तो TRX ले लिया, दिस इज TRX, टेम्परेचर TRX, दिस वे टेम्परेचर, दिस इज टाइम। अगर मैं इसमें हीट करूँगा तो एक ही तरह से चलेंगे, हम गए ऊपर तक, फिर हमने सोकिंग किया, उसके बाद जो होगा वो होगा कूलिंग। कूलिंग अब तीन तरीके से हो सकती है, एक हो सकता है एनीलिंग कर दें, तो एनीलिंग में आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा। यहाँ तक आ गए, उसके बाद आपको पता चला क्या करना है हमें, नॉर्मलाइजिंग, उसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा। एंड देन फाइनली वी मेड द माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस बाय यूजिंग क्वेंचिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट, मैं इसको हटा देता हूँ टाइम को। सो यहाँ पे जो मिला हमें ये है C1, ये मिला है हमें C2 और ये मिला है C3, ठीक है। टाइम भी आप देख सकते हो कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये प्रोसेस पूरा आप समझ सकते हो, ऐसे ऐसे और ये रहा ऐसे, और यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइक्रो स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना है कि माइक्रो स्ट्रक्चर के साथ क्या हो रहा है। अगर मुझे एक डिफॉर्म्ड या फिर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर मिल रहा है, कहाँ पर, स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे कुछ ऐसा ग्रेन मिला हुआ है, ऐसा ऐसा है, साइज कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे ग्रेन्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ हीटअप किया तो ग्रेन्स सारे बड़े बड़े हो गए, ऐसा हो गया बस। इसके बाद उसको कुछ देर के लिए यहाँ पे हमने रोका, उसी टेम्परेचर पे रोका, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म थे, कोई ग्रेन छोटा कोई ग्रेन बड़ा था, तो हमने पाया यहाँ पर आके इस पॉइंट पे कि देखा कि सब ग्रेन एक जैसे हो गए, थोड़ा सा हो सकता है ग्रेन की साइज़ थोड़ी छोटी हो गई बट नंबर ग्रेन की बढ़ गए। उसके बाद जब हम तीन प्रोसेस करेंगे, तीन कूलिंग, थ्री टाइप्स की कूलिंग करेंगे, तो हमें तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स मिल सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे जो जगह नहीं है उसको हम समझ सकें। ग्रेन्स बतानी है आपको, किस में ग्रेन्स ज़्यादा बनेंगे और किस में कम बनेंगे। देखिए, जिसमें हमने कूलिंग धीरे धीरे की है, जिसमें हमने कूलिंग फास्ट की है, आप सोचो कि एक ग्लास है, उस ग्लास को मैंने बहुत ज़्यादा हीटअप कर दिया है और उसको तुरंत मैंने पानी में डाल दिया, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, उसके ग्रेन्स लगेंगे टूट गए, ठीक है। तो छोटे छोटे ग्रेन्स बनेंगे हमारे C3 वाले में, क्वेंचिंग में, बट यूनिफॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो सारे यूनिफॉर्म ही होंगे, ठीक। C2 में उसमें कूलिंग एयर में हो रही है तो थोड़े थोड़े ग्रेन्स बड़े बड़े होंगे इसमें, और इसमें स्लो कूलिंग हुई है,
इसलिए इसमें भी ग्रेन्स तो बराबर बराबर होंगे, सेम साइज के होंगे लगभग, लेकिन इसमें थोड़े ग्रेन्स ज़्यादा और कम बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ग्रेन्स किसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें है। तो हार्डनेस बताओ किसमें ज़्यादा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ इसको H3 और ये हो गया H2 और ये हो गया H1, हार्डनेस, हार्डनेस किसमें ज़्यादा है, जिसमें ग्रेन्स ज़्यादा है। H3 इज़ ग्रेटर देन H2 इज़ ग्रेटर देन H1। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, H1। ठीक है, तो ये हार्डनेस का रिलेशन है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, हार्डनेस के अकॉर्डिंग सारे प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग सरफेस हार्डनेस। सर केस का मतलब होता है सरफेस, इसको भी मैं बहुत क्विक समझाऊंगा, टॉपिक में अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस रिएक्शंस पे और डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग का मतलब है सरफेस के हार्डनेस को बढ़ाना। जैसे आपने टेम्पर्ड ग्लास भी देखा है, और भी ग्लास कोटिंग होती है, उस पर सरफेस हार्डनेस ज़्यादा होती है, बट वो नॉन मेटालिक चीज़ों की बात हो रही है, हमें मेटल्स की बात हो रही है। मेटल्स की सरफेस हार्डनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर स्क्रैच नहीं आता तो उसका एस्थेटिक्स अच्छा होता है। ओके, तो आते हैं हम लोग केस हार्डनिंग का डेफिनेशन, एक बार मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। केस हार्डनिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही है, दैट अल्टर्स चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लो कार्बन स्टील। कार्बन अगर कम है तो सरफेस सॉफ्ट होगा, तो उस सरफेस पे अगर कार्बन या दूसरे अदर नेसेंट एटम्स को अगर मैं उसमें वहाँ पे इकट्ठा कर दूँ, तो वहाँ पे सरफेस की हार्डनेस बदल सकती है। ठीक है, तो अगर लो कार्बन स्टील है उस पर, या फिर प्योर आयरन है उसके सरफेस को हार्ड करना है, सो वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस विच आर नोन एज केस हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, केस हार्डनिंग प्रोसेस। तो पहला है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद क्या रखनी है इसमें, टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे ये होता है, और इसमें याद रखना है आपको, carburizing is a case hardening process in which the carbon atoms are diffused into the surface of low carbon steel to increase surface hardness. It is typically done by heating the steel into the carbon rich environment. कार्बन रिच इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, तो अब देखोगे इस फर्नेस के अंदर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को फैला रखा है और उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन में, तो कार्बन इसके सरफेस पे इकट्ठा होता जाएगा, जिससे इसके सरफेस की हार्डनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन जो है उसको मैं दिखा दूँ एक बार, जो ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दो एटम्स कार्बन मोनोऑक्साइड के, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो इसमें हो जाएगा, एक बन जाएगा CO2 और एक हो जाएगा कार्बन, जो कि नेसेंट होगा। नेसेंट का मतलब है ये ऐसा होगा कि जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को ढूंढ रहा होगा, स्टेबिलिटी मतलब सरफेस को ढूंढा, उस सरफेस पे जाके इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसमें रिएक्शन है जिसमें हमें कार्बन चाहिए। कार्बन ये क्या होगा, व्हेन गो टू सरफेस ऑफ स्टील। ठीक, कार्बन का परसेंटेज सरफेस पे ज़्यादा हो गया, अंदर सरफेस का सॉरी, अंदर हमें कार्बन परसेंटेज नहीं इंक्रीज करना है। कार्बन परसेंट अंदर अंदर इंक्रीज कर दिया, टफनेस कम हो जाएगी, टफनेस कम होगी तो मटेरियल बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा। मटेरियल को फ्रैक्चर नहीं होना है और सरफेस पे स्क्रैच नहीं होना है, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड प्रोसेस पे, साइनाइडिंग। मैंने फिर से बोला, इसमें क्या याद करना है आपको, दो चीज़ें, एक तो कैसा इन्वायरमेंट है, उसके बाद किस टेम्परेचर पे ये होगा, और ये केमिकल रिएक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज साइनाइडिंग। केस का मतलब क्या है, केस का मतलब है सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस, केस का मतलब है सरफेस। केस का मतलब याद रखेंगे आप, केस का मतलब क्या है, सरफेस।
याद कीजिए। बाकी सब चीज़ों में जैसे केसिंग होती है पंप में, उस केसिंग का मतलब क्या है, बाहर उसका कवरिंग, ठीक है, केस मतलब सरफेस। कार्बोरेसिंग हो गया। नेक्स्ट इज साइनाइडिंग, नाम से ही पता चल रहा है इसमें साइनाइड होगा। साइनाइड कहाँ से आएगा, किसी सॉल्ट से आएगा, सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड, उससे यूज़ किया जाएगा, उससे वैसा इन्वायरमेंट बताइए थोड़ा सा हार्मफुल है, ठीक है। साइनाइडिंग इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर डिफ्यूज्ड, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डिफ्यूज होंगे तो हार्डनेस तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। आर डिफ्यूज्ड इनटू द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील बाय इमर्जिंग इट इनटू द मॉल्टन साइनाइड सॉल्ट बाथ। अभी सॉल्ट सॉल्ट बाथ मिलेगा कैसे, या तो NaCN होगा या फिर KCN, ठीक है, KCN। तो आप देख सकते हो इसमें जो ये जो पूरा इन्वायरमेंट है इसका, ये क्या है, सॉल्ट है, साइनाइड सॉल्ट है, जैसे मान लो NaCN है। और ये फर्नेस है, ये चारों तरफ फर्नेस है, वर्क पीस हमने अंदर डाला हुआ है, हीटिंग कॉयल आप देख पा रहे हो, और ये बाथ टब है, किसका बात है, सॉल्ट बाथ, सॉल्ट बाथ, सॉल्ट बाथ। और ये क्या लिखा हुआ है, हीटिंग कॉयल। थोड़ा सा इसमें जो लिखा हुआ है वो ब्लर है, इसलिए मैं इसको पूरा नाम लिख देता हूँ। ये हमारा है वर्क पीस, जिसको की हार्डनेस बढ़ानी है, ठीक है। ये टैंक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में देखेंगे इसको क्या हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में मैं सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ NaCN, सोडियम साइनाइड। तो जो दो मॉलिक्यूल लेंगे हम NaCN के, ट्वाइस ऑफ NaCN, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में ये बनाता है ट्वाइस ऑफ सोडियम साइनाइड, साइनाइड नहीं साइनेट, NaCNO, ठीक। सो NaCNO बन गया सोडियम साइनेट एंड डिकम्पोजेज एज। अब ये डिकम्पोज होगा, अभी हमारे पास क्या चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए, जो हमारे स्टील के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कार्बन भी नहीं है और नाइट्रोजन भी नहीं है। सो अब ये सोडियम साइनेट NaCNO, ये ब्रेकडाउन होगा सोडियम में और नाइट्रोजन में, ठीक। उसके बाद कुछ ऑक्सीजन के पार्टिकल होंगे जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ये बैलेंस्ड नहीं है। ट्वाइस ऑफ NaCNO और कार्बन भी बाहर आएगा, तो नाइट्रोजन एंड कार्बन ये हमें मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद सोडियम और ऑक्सीजन ये अलग अलग हो जाएंगे, देखिए बैलेंस्ड है क्या, ट्वाइस ऑफ Na, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी दो बनेंगे एंड दो कार्बन भी बनेंगे, और ये दोनों क्या होंगे, नेसेंट। मैंने वही बोला जो सरफेस के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, एब्जॉर्ब होने वाले हैं। द नेसेंट कार्बन एंड नेसेंट नाइट्रोजन डिफ्यूज इनटू द स्टील सरफेस फॉर्मिंग अ हार्ड केस, हार्ड केस मतलब हार्ड सरफेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन एटम्स, ओनली नाइट्रोजन एटम्स, साइनाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन डिफ्यूज हो रहा है, बट नाइट्राइडिंग में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन diffuse into the surface of steel to form hard nitrides, improve the surface hardness, wear resistance and fatigue strength, all without quenching. quenching नहीं करना हमें, ठंडा नहीं करना इसको। केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन देख लो एक बार, देखिए डायग्राम लगभग सेम बनाना है। यहाँ पे जो वर्किंग इन्वायरमेंट है टू गेट द नाइट्रोजन इज अमोनिया, अमोनिया को हमने इसके अंदर भेजा है, अमोनिया गैस के फॉर्म में होगा, यहाँ पे वर्कपीस हुए, इस वर्कपीस के चारों तरफ हमारे पास अमोनिया है, जैसे हम इसमें हीट करते हैं अमोनिया ब्रेकडाउन हो जाएगा और नाइट्रोजन इसके सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है।
और इसका टेम्परेचर आपको याद रखना है, वर्किंग टेम्परेचर कितना है 500 to 550। इसका कितना है साइनाइडिंग का टेम्परेचर मेंशन, हाँ 870, ऑलमोस्ट 870। एंड फर्स्ट वन का कितना था 900 to 950। तो सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बोराइजिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके बाद साइनाइडिंग का है, और सबसे कम किसका है, नाइट्राइडिंग का है। ठीक है, अब ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अमोनिया के। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ NH3, इसमें केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ट्वाइस ऑफ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट विल डीकम्पोजेज इनटू ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है वो नेसेंट नाइट्रोजन है, और ये डिफ्यूज़ हो जाएगा कहाँ पर, स्टील्स के सरफेस पे, और नाइट्राइड्स बनाएगा एंड विथ and reacts with the alloying elements like aluminium, chromium and molybdenum to form hard nitrides. Okay, the last point है हार्डनेस कंपैरिजन। तो मैं बना देता हूँ NCC, सबको पता ही है NCC क्या है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, कार्बोराइजिंग में। कार्बोराइजिंग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर किसमें, नाइट्राइडिंग में। तो जिसमें टेम्परेचर कम, तो आपको याद रखने के लिए मैं बस बता दूं, क्वेंचिंग में टेम्परेचर बहुत सडनली डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हार्डनेस उसकी ज़्यादा होती है। तो हार्डनेस किसकी सबसे ज़्यादा होगी, नाइट्राइडिंग की। और सबसे कम किसकी होगी, कार्बोराइजिंग की, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, NCC साइनाइडिंग है, ये सॉरी कार्बोराइजिंग है, ये हमारा नाइट्राइडिंग है, एंड दिस इज साइनाइडिंग। ठीक, सो तीनों पॉइंट मैंने लिखा भी है। नाइट्राइडिंग yields द हाईएस्ट सरफेस हार्डनेस, ideal for fatigue and wear resistance. Cyaniding gives quick result with the high hardness but involves toxic cyanide salt, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। कार्बोराइजिंग अलाउज डीपर केस डेप्थ, अंदर तक जाता तो है बट विथ रिलेटिव लोअर हार्डनेस देन नाइट्राइडिंग, सबसे कम होता है कार्बोराइजिंग का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कंप्लीट सिलेबस ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इससे नोट्स और असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, दिस आई वी हैव studied 3 lectures from this particular units, engineering materials and heat treatment process. Okay, thank you all, thank you very much.